गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्ते सभी को, बहनों भाइयों। सब लोग ज्वाइन किए हैं प्रवाह ने इनरम का एक कोर्स में, जो दूसरा सेशन है कोर्स का। तो नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुंदर राजन है। इनरम फाउंडेशन आनंद से बात करता हूँ। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है पानी के बारे में, पानी की क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता के बारे में, और उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज मेरे साथी हैं शुभश्री बनर्जी, राजनारायण इंदुदा। तो हम सब चर्चा करेंगे पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी यानी स्वास्थ्य, हेल्थ, ये इश्यूज के ऊपर। ये दूसरा सेशन हम कर रहे हैं इस कोर्स में। अभी कृपा बेन और नितिन भाई बहुत मेहनत किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और सब लोग एक साथ आ गए हैं एक ग्रुप में। ये बहुत अच्छी बात है, एक हफ्ते में इतना आगे हम बढ़े हैं। और आज कोर्स में भी सबको कैसे एनरोल करना है, कोर्स मेंबर आप कैसे बन सकते हैं, वो भी सिखाएंगे सबको। व्हाट्सएप में भी हम शेयर करेंगे कि ये कोर्स के मेंबर कैसे बन सकते हैं गूगल क्लासरूम में। आज भी यहाँ पर भी दिखाएंगे ना। तो सबसे पहले मेरे कलीग हैं इंदुदा, वो लास्ट वीक जो हम लोग टॉपिक बात किए हैं उसके बारे में थोड़ा एक समरी बताएंगे। दादा, आप थोड़ा लास्ट वीक का थोड़ा समरी कर सकते हैं? અને થેન્ક તમે યુ। કહો ગુજરાતીમાં બોલવાનું હોય તો હું કોશિશ કરીશ બધા સમજી શકે તો. હેલો, બધાને આભાર. અને આજે સેકન્ડ ક્લાસમાં બધાને જોઈન કરે છો એટલા માટે ધન્યવાદ. મેં કોશિશ કરું છું ગુજરાતીમાં જેટલા સુંદરરાજન અને શુભશ્રી લાસ્ટ વીકમાં કહી દીધું છે. એ લોકોને બે વસ્તુ કહ્યું હતું. વન, પરસેપ્શન. कोई भी वस्तु का एक परसेप्शन, धारणा कैसी होता है, સાંભળીને જોઈને સૂંઘીને, અને ધીરે ધીરે એની ઉપરથી કલ્ચરલ થિંગ્સ લઈ આવ્યા. જોડે જોડે એમને બોલતે બોલતે કેવી રીતે ત્રણ વસ્તુથી આપણે કોઈ વસ્તુ એક રૂપ લઈ શકતા હું, જેમ કે જોઈને, પાણી જોઈને, પછી સૂંઘીને, પછી ટેસ્ટ કરીને, અને લાસ્ટલી એક વસ્તુ છે સેન્સ, સાંભળીને પણ. પેલા જાગાનું પાણી ખરાબ છે એ સાંભળીને પણ કોઈને નહીં પીવે, પછી ટેસ્ટ ફેસ્ટ તો જુદી રહ્યો. ત્યાર પછી આ કેવી રીતે એની ઇમ્પેક્ટ થાય. ત્યાર પછી એમને એમ પણ કીધું કે કલ્ચરલ કેવી રીતે થાય, જે એક એક જાગામાં એક એક વસ્તુને સાથ, ધર્મનો સાથ, માણસને વ્યવહાર કે સાથ, સ્ટેટમાં પણ કલ્ચર ચેન્જ હોય એટલે પાણીની વ્યવહાર પણ ચેન્જ થાય છે. એ પછી એમને આવ્યો સાયન્સમાં, જે એક તો છે જોઈને સેન્સ કરીને જે લોકોએ ધારણા કરી, લોકોને પરસેપ્શન કરી. ત્યાર પછી આ સાયન્સ સીધી આસ્તા પાણી લાવીને લેબોરેટરીમાં જઈને ટેસ્ટ કરવાનું હોય. ત્યાર પછી લોકોને એક અલગ વિશ્વાસ આવે, એ બી એમને કીધું. ત્યાર પછી આવ્યો એમને જેન્ડર, જે પાણી કોણ માણસ અમારા સંસારનો અંદર, ફેમિલીનો અંદર એમને પાસે સબસે વધારે પડતી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ છે આપણે મહિલા લોકોને. સ્ત્રીઓ પાસે પાણી એટલે એક જિમ્મેદારી છે. કોઈ બી જગ્યાએ લઈ આવો, બધાને ખાના બનાવો, કે કોઈ પાણી પીઓ, કેવી રીતે રાખે એમના ઉપર જિમ્મેદારી આવી જાય છે. ત્યાર પછી છે પ્રિવિલેજ. એની કરતા કેવું કે કોઈ માણસ વધારે પૂરતી સારા પાણી પીવા માટે કેવી રીતે સારું પાણી, આરોગ્યને પાણી, આનો જગા જગા કા પાણી પી શકે, એ બાબતમાં એમને કીધું. લાસ્ટ એમને કીધું છે ઇકોલોજી, અર્થાત કે કેવી રીતે એક એક જગ્યાએ એન્વાયરમેન્ટને લીધે પાણી કેવી રીતે ચેન્જ થાય. તો એને પછી માર્કેટ, કેવી રીતે માર્કેટમાં પાણી આગળ લઈ આવે છે, નળનું પાણી સારું છે કે આરોના પાણી છે કે બોટલનું પાણી સારું છે, એ બાબતમાં પણ એમને કીધું. ત્યાર પછી આવ્યો એમને એન્વાયરમેન્ટ, એટલે કે પર્યાવરણ. પર્યાવરણ એટલે કે એની અંદર
પછી યુઝેસ બતાવ્યો કે બે ટાઈપ યુઝ હોય, એક તો આપણે ફાર્મિંગ માટે જેવી રીતે લેવાનું હોય અને સાથે સાથે આપણને આપણા ઘરને માટે કેવી રીતે યુઝ થાય એ બી એમને કીધું. અને એ થઈ જાય પછી આપણે સુવસ્તીજી આવીને BIS નું અર્થાત પાણીનું ગુણવત્તા કેવી રીતે થયો એ બાબતમાં બોલ્યા. એને બે ત્રણ વસ્તુ કીધું છે. એક આખી પૂરા તો એક સાથે ના થાય એટલે આજે પણ કદાચ કહ્યું હશે. BIS તો આપણે જાણો છો, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ્સ કરીને એ સંસ્થા ભારતમાં છે. એને બે વસ્તુ નક્કી કરી લો. એક છે એક્સેપ્ટેડ ક્વોલિટી જો આપણે લઈ શકીએ, અને બીજી છે પરમિસિબલ ક્વોલિટી, અર્થાત કે અમે લોકોની જે મિનિમમ લઈ હોય એ આપણે એક્સેપ્ટ કરી શકીએ. એના માટે TDS માટે કીધું 500 mg પર લિટર અને પરમિસિબલ 2000 સુધી કર્યું. એવી રીતે આપણે આયરન માટે કેટલું છે 0.3 mg પર લિટર કર્યું હતું, અને ઉપરનું કેટલા લિમિટ નથી. જોડે જોડે એમને એને સોર્સ કેવી રીતે થાય, રિસ્ક કેવી રીતે હોય છે પાણીની ક્વોલિટી લીધે, અને સોલ્યુશન કેવી રીતે થઈ શકે એને એક છોટી છોટી રીતે એમને સમજાવી દીધું. પછી ફ્લુરાઇડ કીધું 1 mg આપણે એક્સેપ્ટેડ છે, પણ 1.5 સુધી આપણે લઈ શકાય. એને પછી ઉપર જાય તો લોકોને કેવી ટાઈપનું રિસ્ક હોય એ પણ એમને કીધું, જે ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ, સ્કેલિટલ ફ્લોરોસિસ, અને એને ટ્રીટમેન્ટ કરીને પાણીનું કેવી રીતે સુધારી શકે એ પણ એમને કીધું. પછી આવ્યો રેસિડ્યુઅલ ક્લોરીન, જેને આપણે તબિયત ખરાબ થાય કે નહીં 0.2 mg સુધી બરાબર છે, પણ ઉપરથી બધા લઈ જાય 1 mg અને પાછી જાઓ તો બહુ બધી તકલીફ થઈ શકે. એટલા સુધી કરીને તે દિવસની પૂરું કર્યું. અને આજે સુંદરરાજન તમે આગળ લઈ ચાલો. હોપ મેં મારા જે સારાંશ કર્યું એ બધાને સમજમાં આવ્યું હશે. ધન્યવાદ બધાને. थैंक यू विजेता, थैंक यू. बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि एक हफ्ते के ऊपर हुआ है, तो ये समरी बहुत अच्छा आपने किया. तो एक अच्छा बैकग्राउंड मिला है आज के लिए कि आज का जो टॉपिक है वो हम समझ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू. तो अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं. अभी 60 पार्टिसिपेंट्स तक हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं. आज का टॉपिक जो आप स्क्रीन में आज देखते हैं कि लास्ट वीक हम लोग जो स्टार्ट किए हैं उससे हम थोड़ा और आगे जाएंगे, है ना. हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे एक एक अलग अलग इश्यू में और उसको समझने का कोशिश करेंगे. हमने आज 6 टॉपिक लिया है. 6 टॉपिक में से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग ने सुना होगा और 3 दूसरे ऐसे हैं जो नए टॉपिक हैं और गुजरात में, भारत में ये वाटर क्वालिटी के प्रॉब्लम में अभी नया निकल के आ रहा है. ये जो 6 टॉपिक है इसको छोड़कर और भी बहुत सारे हैं. हम लोग सभी कुछ एक प्रेजेंटेशन में डीप में कवर नहीं करेंगे और आप लोग को रीडिंग मटेरियल भी बताएंगे कि आप खुद से कैसे भी पढ़ सकते हैं और हमारा हेल्प ले सकते हैं. जैसे मैंने आपको शेयर किया कि ये सारा रीडिंग मटेरियल अभी हम लोग गुजराती में भी लेके आ रहे हैं. इसी का जो एक ट्रांसलेशन, एक ऑडियो पार्ट अगर बोले तो उसमें गूगल क्लासरूम के अंदर कोर्स में ये सब कुछ अवेलेबल है. आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसका इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि कैसे आप मेंबर बन सकते हैं गूगल क्लासरूम में, ताकि आपको एडवांस में जो मटेरियल है वो एडवांस में मिल जाए और स्टडी मटेरियल और भी आपको एक ही जगह में मिल सकता है. तो इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ आज के टॉपिक में. तो आज हम लोग 6 टॉपिक कवर करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे ये 6 टॉपिक में. उसमें है फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, यूरेनियम, मर्कुरी और मैंगनीज. तो इसमें मैंने जैसा आपको कहा फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट ये ज़्यादा आपने सुना होगा ड्रिंकिंग वाटर में वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम, और आपको शायद पता भी होगा. और यूरेनियम, मर्कुरी और मैंगनीज ये नए प्रॉब्लम्स हैं
जो निकल के आ रहा है कि हमको नया पता चल रहा है कि ये पानी में है, गवर्नमेंट को नया पता चल रहा है, रिसर्च संस्थाओं को नया से पता चल रहा है, एनजीओ को नया से पता चल रहा है। तो ये धीरे धीरे लोग देख रहे हैं कि यूरेनियम, मरकुरी और मैंगनीज से भी हम कैसे लड़ सकते हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं और मैसेजेस क्या दें ना लोगों को, गवर्नमेंट को भी मैसेजेस क्या दें, है ना, ये सब इश्यूज के ऊपर ये हम लोग ये 6 टॉपिक में आज हम सीखेंगे। तो ये जो 6 टॉपिक है उसमें इस तरीके से भी हम लोग करेंगे कि मेरे जो कलीग हैं शुभश्री बनर्जी, वो 3 टॉपिक्स कवर करेंगी और दूसरे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा ना। तो शुभश्री, मैं प्रेजेंटेशन में ही करता हूँ, मुझे नेक्स्ट स्लाइड्स नेक्स्ट आप बोल सकते हैं और मैं आगे आगे बढ़ाते रहूंगा। ये ठीक है शुभश्री? हाँ जी ठीक है। ओके ओके, तो मैं आगे फ्लोराइड के टॉपिक में मैं आगे जाता हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है मुझे आप पास कर सकते हैं, जो भी टॉपिक में आता है आप मुझे कह दीजिए। ओके शुभश्री? ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। फ्लोराइड में हम जाते हैं, तो शुभश्री आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी फ्लोराइड वाला जो स्लाइड मैंने अभी आगे लेकर गया हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। आज दूसरा दिन है हमारे कोर्स का। आज मैं फ्लोराइड के कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स के ऊपर भी बात करूंगी। तो आज हमारा पहला पैरामीटर है फ्लोराइड। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो फ्लोराइड जो हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है जितना परसेंटेज का, वो है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर ही हम फ्लोराइड पानी में ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और अगर शुभश्री कोई एक मिनट, सॉरी शुभश्री, आई थिंक कोई लोग बोल रहे हैं कि उनको स्क्रीन दिख नहीं रहा है। आई थिंक एक बार कंफर्म कर लें कि लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। स्लाइड्स दिखाई दे रहा है सबको? कंफर्म कर सकते हैं? यस सर, हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके शुभश्री, सॉरी, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी। तो जैसे कि पिछली बार बात प्रेजेंटेशन। ओके, दादा आप क्या कर सकते हैं कि मेरे नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ओके, थैंक यू। यस शुभश्री, हाँ प्लीज आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ओके, थैंक यू। ये फ्लोराइड असल में आती कैसी है पानी में, हमारे पीने के पानी में ये फ्लोराइड आता कैसा है? तो ये जो फ्लोराइड है ये जियोजेनिक प्रॉब्लम है। ये हमारे जो जमीन के नीचे जो चट्टाने हैं उसी में फ्लोराइड का ये होते हैं, चट्टाने होते हैं। जब ये पानी में घुलते हैं, हम जब बोर करते हैं कुएं के पानी, बोरवेल का पानी, तो वो उसमें से घुल के हमारे पीने के पानी में आते हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि फ्लोराइड अच्छा भी होता है। बिल्कुल, जो लो फ्लोराइड मतलब 1 ppm से कम अगर फ्लोराइड हम लेते हैं तो वो हमारे दांतों के लिए काफी अच्छा होता है, दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे अगर हम देखेंगे तो टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड डाले जाते हैं जिससे कि कैविटीज नहीं होती। लेकिन वही अगर हम देखें तो हाई फ्लोराइड, अगर हम 1 ppm या 1.5 ppm से ज्यादा अगर हम फ्लोराइड कंटिन्यूअसली ले रहे हैं हमारे रोज के पीने के पानी में, तो यही प्रॉब्लम कर जाता है। ये हमारे दांत जो कम फ्लोराइड पीने से पानी कम फ्लोराइड जो हमारे दांतों को मजबूत करता है, कैविटीज को रोकता है, वही हाई फ्लोराइड ये दांतों को सड़ा देता है। ये कैल्शियम को ना निकाल देता है जो हमारे दांतों में जो एनामल्स में होते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस होते हैं। क्योंकि फ्लोराइड का काम ही होता है जहाँ पे भी ये कैल्शियम है वो कैल्शियम को निकाल के वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस वजह से जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं,
उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, टेढ़े हो जाते हैं, ये इशू होती है। कुछ रिसर्चेस ऐसे भी हैं जहाँ पे थायराइड के भी इश्यूज बताए गए हैं, थायराइड ग्लैंड के। नेक्स्ट स्लाइड सुंदर जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लोराइड से, हाई फ्लोराइड का पानी पीने से डेंटल फ्लोरोसिस भी होती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्केलेटल फ्लोरोसिस जो राइट हैंड साइड के जो पिक्चर्स हैं उसमें किस तरीके से आपके गर्दन थोड़े से झुक जाते हैं, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये केसेस हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस के। और लेफ्ट हैंड साइड में ये डेंटल फ्लोरोसिस एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केस का एक एग्जांपल है कि कैसे डेंटल फ्लोरोसिस के भी दिखते हैं। नेक्स्ट। अभी ये फ्लोराइड मतलब क्या करता है हमारे शरीर में, तो ये एक आपको एक एग्जाम्पल्स के तौर पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको अगर पहले से आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब उसमें खून की मात्रा की कमी है, आयरन की कमी है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके जब डिलीवरी के बाद ये तो अभी तक पूरे रिसर्चेस में नहीं आए हैं कि प्लासेंटा से भी बच्चे, मतलब माँ के गर्भ से भी बच्चे को भी फ्लोराइड ट्रांसफर होता है कि नहीं, फ्लोरोसिस होता है कि नहीं, लेकिन कुछ स्टडीज बताते हैं कि हाँ होता भी है। लेकिन बाद में जब प्रेगनेंसी के दौरान जब ये आयरन की भी कमी है और लो फ्लोराइड का पानी भी अगर वो पी रही, हाई फ्लोराइड का पानी भी अगर वो पी रही है, तो इसको जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इस तरीके से है कि 1 यूनिट ऑफ फ्लोराइड जो है, मतलब 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड आपका 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम को खत्म कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वहीं से स्टार्ट होना चालू होता है। फिर डिलीवरी के बाद क्योंकि कैल्शियम की भी कमी है, तो बच्चे में भी वो कैल्शियम की कमी आ जाती है, क्योंकि माँ के दूध में भी वो सारी कमियां आती रहती है। उसके बाद बच्चा भी जब पानी पीने लगता है हाई फ्लोराइड का, तो उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स इश्यू आती है, जिससे कि उसमें भी स्केलेटल फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम दिखते हैं। जैसे कि अगर डेंटल फ्लोरोसिस के केसेस अगर हम देखेंगे तो ये दूध के दांतों में नहीं दिखते हैं। जब हमारे 8 साल या 6 साल के बाद जब हम न्यू टीथ्स आते हैं, उसमें डेंटल फ्लोरोसिस के केसेस वो स्टेन्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये फ्लोराइड को हम किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं। कोई चीज को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो फ्लोरोसिस को रोकथाम एक ही तरीके से, 2 तरीके से हो सकता है। एक है आप साफ पानी पीजिए, फ्लोराइड फ्री पानी पीजिए और न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए। खाने में अपने विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसी चीजें अगर आप लेंगे तो ये रोकथाम करता है फ्लोराइड को हमारे शरीर को क्षति पहुंचाने की। तो जैसे सेफ वाटर के लिए कहा जाता है कि अगर कोई कुआं है, हैंडपंप है, कोई बोरवेल है जो इसका पानी फ्लोराइड फ्री है, तो उसी का सप्लाई होना चाहिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बरसात के पानी को आपको पीना चाहिए। कोई डोमेस्टिक फिल्टर है, जैसे इनरम का है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना का फिल्टर है, ऐसे देश में काफी सारे ऐसे फिल्टर्स हैं जो फ्लोराइड रिमूव करते हैं। वाटर सप्लाई है इस तरीके से, जो पाइप वाटर सप्लाई से भी सेफ वाटर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लोरोसिस का रोकथाम एक सेफ वाटर है और एक न्यूट्रिशन है। अगर सेफ वाटर में हम देखें कि किस तरीके से हम किस तरीके से हम सेफ वाटर यूज कर सकते हैं, डगवेल से, बरसात के पानी से या फिल्टर यूज करके, उसी तरीके से न्यूट्रिशन में भी हमको ऐसे ही या फिर हम टैबलेट्स में जा सकते हैं, लेकिन टैबलेट ज्यादा दिन तक सेवन करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कॉम्बिनेशन का टैबलेट है, जिंक एंड विटामिन डी का। लेकिन
जो मेन सोर्स ऑफ जो फूड्स हैं, जैसे आंवला है, तिल चिक्की है, हमारे खाने में, रोज के खाने में जो पालक है, इसमें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, नींबू है, अगर हम वो लेते हैं, गुड़ और तिल, इसका कॉम्बिनेशन से आयरन भी अच्छा होता है और मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है फ्लोरोसिस होने से। मेन हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि जो फ्लोराइड कैल्शियम को खत्म कर दे रहा है, निकाल दे रहा है, तो हमारे जो शरीर से जो कैल्शियम निकल जा रही है, हमको वो कैल्शियम खाने के रूप में शरीर में वापस लाना होता है, ताकि जो खाली वो जो खत्म हो रही है कैल्शियम, उसको हम फिलअप कर सके और फ्लोरोसिस को हम रोक सके। नेक्स्ट स्लाइड। अभी दूसरा जो हमारा पैरामीटर है आर्सेनिक, पिछले ही हफ्ते 9 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल आया हुआ था कि गुजरात में भी कोई जगहों पे आर्सेनिक के स्टडी में आर्सेनिक्स मिले हैं। तो आज मैं पहली बार इस पे आर्सेनिक के ऊपर आपसे बात करूंगी कि ये जो डिजायरेबल, मतलब कितनी प्रतिशत तक हम पीने के पानी में वो हम ले सकते हैं, वो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अब ये सोचिए कितना कम है। वहीं पे वो फ्लोराइड का डिजायरेबल मतलब हम ले सकते हैं वो 1 मिलीग्राम है, और वहीं पे आर्सेनिक है 0.05, और इसका कोई नेक्स्ट रिलैक्सेशन नहीं है कि अगर आपके पास कोई सेफ सोर्स नहीं है तो हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ 0.05 मिलीग्राम के अंदर ही पानी, मतलब आर्सेनिक हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये आर्सेनिक भी फ्लोराइड की तरह ही है जो जमीन के नीचे चट्टानों में पाए जाते हैं, और ये जो मेन इसका जो हम बेल्ट देखेंगे कि आर्सेनिक का जो है वो जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो पूरा सेक्शन है उसमें वो जोन पड़ता है आर्सेनिक का। नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा कि लास्ट वीक में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बहुत बड़ा एक मतलब एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कम से कम 49,000 लोग हैं गुजरात में जिसे जो कि संक्रमित हो सकते हैं हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक भूजल में पाए जाने से। तो ये जो स्टडी की गई है वो स्टडी की है एक्सपर्ट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक साइंस स्विट्जरलैंड के हैं। तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो आर्सेनिक की जो प्रॉब्लम है, ये जो उनकी स्टडीज में निकली थी कि कुछ हिस्से हैं कच्छ के जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ कच्छ है, मतलब गांधीधाम के साइड वाला जो सेक्शन है, बनासकांठा है जो नॉर्थ वेस्ट पाटन के साइड के बनासकांठा है, ये यहाँ पे जो आर्सेनिक के हाई कॉन्सेंट्रेशंस पाए गए थे उनके रिसर्च के द्वारा। इसके अलावा अहमदाबाद और गांधीनगर में भी ये आर्सेनिक के लेवल्स पाए गए हैं। अभी इनके जो स्टडीज के हिसाब से बताया गया है कि अगर कोई ज्यादा से ज्यादा इसमें आर्सेनिक से एक्सपोज, मतलब बहुत दिन तक आर्सेनिक का हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक का पानी पी रहा है, तो उसको स्किन कैंसर, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के कैंसर, लंग कैंसर या हार्ट की बीमारी, हृदय की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर्स में बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आर्सेनिक अभी तक के, ये तो आज का, ये अभी रिसेंट गुजरात का एक रिसर्च निकला है कि गुजरात में भी आर्सेनिक हाई कॉन्सेंट्रेशंस में पाए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो रिसर्च बता रही है आर्सेनिक के ऊपर कि ये असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो कम से कम 60 के ऊपर के प्रतिशत के लोग ये आर्सेनिक, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक का पानी पी रहे हैं,
जिनको ये सारी बीमारियां वहां पे बहुत कॉमन है, स्किन कैंसर्स, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज का। तो ये आर्सेनिक सिर्फ एक बहुत ही एलिमेंट है जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब जो कैंसर का हमारे शरीर में कैंसर क्रिएट होता है, कैंसर का बीमारी लाती है। ये ना केवल एक कैंसर, ये एक नर्वस सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट। काफी सारे हमारे देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है कि कौन से फिल्टर्स अदर देन आरओ, ये कोई हर चीज का सॉल्यूशन आरओ नहीं है, तो आर्सेनिक रिमूवल के लिए भी आप उन्होंने ऐसे काफी सारे फिल्टर्स का ऐसा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने इन्वेंशन किया है। जैसे एक बायोसैंड फिल्टर भी है जो बहुत सिंपल है, जिसमें आयरन नेल्स के थ्रू और इसमें फिल्टर होते हुए आर्सेनिक रिमूवल किया जाता है। एक आजकल जो आईआईटी चेन्नई है जो अमृत फिल्टर, जो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जो पूरी इंटायर डिस्ट्रिक्ट है, नाडिया है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने ये अमृत फिल्टर उन्होंने लगाए हैं, हैंडपंप के अटैच किए हुए हैं, जो कि एक नैनो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है जो काफी सक्सेसफुल हुआ है वेस्ट बंगाल में। इस टेक्नोलॉजी को जब इम्प्लीमेंट किया गया है तो ये काफी रीजनेबल है और इसमें ज्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं लगती है, तो ये कम्युनिटी फ्रेंडली है, जो स्मॉल कम्युनिटीज के लिए, मतलब स्मॉल हाउस होल्ड बेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। सुंदर जी, आप ये नाइट्रेट कवर कर दीजिए। हेलो। थैंक यू शुभश्री। सॉरी, मेरा म्यूट में था, मैं बात करते गया था। थैंक यू शुभश्री। जो शुभश्री ने जो कवर किया कि जो फ्लोराइड और आर्सेनिक जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये पूरे इंडिया में अगर देखते हैं तो अगर फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम्स को हम लोग जोड़ेंगे तो पूरे कंट्री के सभी पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है फ्लोराइड एंड आर्सेनिक। हमारा एक फिल्म है सिटीजन्स एक्स जो फ्लोराइड एंड आर्सेनिक प्रॉब्लम के ऊपर है। जो जितने लोग इस प्रॉब्लम से आज भी इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, जिनका कोई नाम भी नहीं है, इसलिए हमने इसको सिटीजन एक्स कहा है। ये फिल्म आप यूट्यूब में देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नाइट्रेट पे। नाइट्रेट, हाई नाइट्रेट इस तरह का प्रॉब्लम है कि भारत में कोई भी जगह में जाके आप मेजर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हम जहाँ पर भी स्टडीज करते हैं, हम मेजर करते हैं तो हमको हाई नाइट्रेट मिलता ही है। WHO ने इसकी जो लिमिट है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर रखा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने, BIS ने इसको 45 mg पर लीटर रखा है। इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन इंटरनेशनली चलता रहता है कि इसका लिमिट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक माइल्ड कार्सिनोजन माना जा रहा है, यानी कैंसर कॉजिंग माना जा रहा है, बट इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हो रहा है। हेल्थ जो रिसर्च चल रहा है उसमें नए नए चीज़ें पता लगाए जाते हैं, और अल्टीमेटली देन ये बहस चलता रहता है। तो इस बार जो अभी BIS के स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको नाइट्रेट को 10 मिलीग्राम पर लीटर में लाना चाहिए। और हमारा देश आज के दिन में इस स्थिति में है कि हम इसको 10 मिलीग्राम पर लीटर में लेके जा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है 2020 के आज के दिन पे जब हम इसको बात कर रहे हैं। तो नाइट्रेट्स आप सब तो जानते हैं कि नाइट्रेट्स का एक मेजर सोर्स तो खाद है, फर्टिलाइजर है, जो खेती से है ना। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है कि जो खेती के अंदर से हम यूज करते हैं, तो वो उसमें से काफ़ी मिट्टी के अंदर से पानी में चला जाता है। बट ये नाइट्रेट से जो सोर्स है वो सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, ये ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट से भी आता है। यानी कि जहाँ पर कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अभी मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, आनंद खेड़ा ज़िला, वहाँ पर कैटल पॉपुलेशन काफ़ी हैं। तो यहाँ पर कई साल पहले एक रिसर्च भी हुआ था देखने के लिए कि
क्योंकि यहाँ पर अमूल है और इतना सारा कैटल है, तो यहाँ पर नाइट्रेट पानी में ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पर देखा गया कि कहीं कहीं पॉकेट्स में नाइट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा भी है। और इसमें ये भी है कि इसमें ये भी पता चला कि जो गोबर है उसको काफ़ी दिनों तक ड्राई करके अगर रखते हैं और उसके बाद इसको छोड़ते हैं तो क्या उससे नाइट्रेट्स कम होता है, लीचिंग। तो हाँ, इसमें पता लगा कि काफ़ी ड्राई होने के बाद जब इसको रखते हैं तो थोड़ा कम होता है लीचिंग, माने कि नाइट्रेट्स पानी के अंदर जाना, भूजल ग्राउंड वाटर के अंदर से जाना थोड़ा कम होता है। तो इसमें जानने के लिए बहुत सारा है ना, ये जो टॉपिक में और ये जो हमारे जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स के अंदर से भी नाइट्रेट्स अंदर जाता है। और एक नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल है, जैसे पानी का एक साइकिल है वाटर साइकिल, जैसे कार्बन का एक साइकिल है कार्बन साइकिल, वैसे नाइट्रोजन का भी एक साइकिल है ना। नाइट्रोजन इस बैक्टीरिया भी है जो कन्वर्शन करता है। आपको सभी को याद होगा कि हवा में जो सबसे ज्यादा जो गैस है वो भी ऑक्सीजन नहीं है ना, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है ना कि ये पूरे सिस्टम के लिए, अर्थ सिस्टम है ना, कि पूरे सिस्टम को देखेंगे, पानी ही नहीं, ये पूरे इंटायर सिस्टम को देखेंगे तो नाइट्रोजन जरूरी है। मगर हम इस साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम इस साइकिल को जब डिस्टर्ब करते हैं और ज्यादा नाइट्रोजन हमारे शरीर में ज्यादा जाता है तो इसका असर पड़ता है ना हमारे शरीर के ऊपर, यानी कि हेल्थ इम्पैक्ट्स इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कई साल पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन किया था। और बेसिकली आप देखेंगे तो हर जगह ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट ये है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली हमारी जो हेमोग्लोबिन है, जिसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग है, यानी जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर से पूरे शरीर में ऑक्सीजन एनर्जी पहुंचता है। अभी ये जो नाइट्रेट्स हैं वो शरीर में जाकर शिशु में, यानी कि बहुत छोटे बच्चों में, ज्यादातर 1 साल के अंदर की उम्र के बच्चों के अंदर और भी कम उम्र के बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है उसको रेसिस्ट करने के लिए। ये मिथाग्लोबुमिन्स फॉर्म करता है, यानी कि हेमोग्लोबिन के ऊपर एक लेयर बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले नहीं पाता है। तो क्या होता है कि ये जो लंग्स में हमारे हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाता है, और ये एक तरीके का ब्लड ब्लू होने दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये ऐसा माना जाता है कि फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स जिसका किडनी, लिवर, हर चीज सही है, लंग सही है, तो उनको ये कैपेसिटी है ये रेजिस्ट करने के लिए। मगर रिसर्च कहता है कि ये जो बेसिकली इसमें सांस का प्रॉब्लम होता है, और ये सांस की तकलीफ एक तरह की आस्थमा बोल सकते हैं, आस्थमा की तकलीफ है। तो ये ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है, इसमें रिसर्च बहुत जरूरी है कि एक उम्र ज्यादा होने के बाद भी नाइट्रेट क्या मिथाग्लोबुमिन्स बनाता है। और रिसर्च कहता है हाँ बनाता है, मगर उतने प्रोपोर्शन में नहीं, यानी कि छोटे बच्चों में 20-30% भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर बड़ों में, एडल्ट्स में एक 2-3%, 5% भी अगर बनता है मिथाग्लोबुमिन्स मतलब हेमोग्लोबिन का, तो क्या उसकी वजह से आस्थमा कॉज हो सकता है, उसकी वजह से क्या बच्चों में कि बड़ों में सांस की तकलीफ हो सकती है। ये रिसर्च नहीं किया गया है, ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमने कई साल पहले इस रिसर्च को करने की कोशिश की थी, मगर अभी तक हम इस तरीके के काम को सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि काफी लोगों के फंडिंग एजेंसीज के अटेंशन में भी नहीं है। मगर ये बहुत जरूरी है ना, इसके ऊपर जानना कि क्या ये आस्थमा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है क्या, स्पेशली भारत में जहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम भी है। और ये कार्सिनोजन भी है जो कैंसर कॉजिंग है। तो नाइट्रेट्स का ये हमको जानना भी काफी जरूरी है। नाइट्रेट्स का जनरली माना जाता है और है भी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इसको रिमूव करता है। मगर हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस आप सब लोग जानते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, आरओ उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को रिमूव करता है, यानी इन प्रिंसिपल थियरी में नाइट्रेट को रिमूव करना चाहिए। और आरओ के बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं जो आप लोग सभी जानते हैं। और नाइट्रेट का आज तक और कोई ट्रीटमेंट सोल्यूशन नहीं दिखा है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि नेचुरल प्रोसेस, यानी कि इको बेस्ड ट्रीटमेंट, इको बेस्ड सॉल्यूशंस, वो नाइट्रेट को बहुत हाई 200-300 mg से लेकर 50 mg तक लेके आ सकते हैं। मगर उसको 50 mg से 10 mg की उससे कम लेके आना, उसके लिए वो उस तरीके का वेटलैंड बेस्ड और इकोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट में नहीं हो सकता है। ये हमको एक आपको कवर करना था नाइट्रेट। अभी तक हम लोग ने जो 3 कंटामिनेंट्स कवर किए हैं वो है फ्लोराइड, आर्सेनिक
और नाइट्रेट। अभी इसके आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है यूरेनियम, मरकुरी और मैंगनीज। अभी ये जो तीन है, यूरेनियम, मरकुरी और मैंगनीज, ये इसको कहा जाता है इमर्जिंग कंटामिनेंट्स, यानी कि इस तरीके के और भी हैं, क्रोमियम भी है जो इमर्जिंग कंटामिनेंट्स है। हम चाह रहे थे कि हम लोग ये सब कुछ कवर करें। और भी कई चीजें हैं, हमको ये भी लगा था कि कोविड-19 रिलेटेड जो पैथोजेंस है उसको भी कवर करें, और बैक्टीरिया एंड थिंग्स। रिक्वेस्ट काफी सारा आया, मगर हमको लगा कि जितने टॉपिक्स हम लोग आज कवर कर रहे हैं वो भी काफी ब्रॉड है, इसलिए हम देखते हैं कि बाकी अगर अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम क्रोमियम, कोविड-19 रिलेटेड पैथोजेंस, बाकी जो बैक्टीरिया एंड वायरस हैं वो सब भी कवर कर सकते हैं, सेलेनियम और दूसरे डिजीजेस हैं वो भी कवर कर सकते हैं। आज हम लोग यूरेनियम, मरकुरी और मैंगनीज में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ फिर से प्रेजेंटेशन में। पहले यूरेनियम पे। तो यूरेनियम जो ऐसा चीज है, आप लोग सभी लोग सुना होगा यूरेनियम के बारे में। इसके पहले मैं फिर से एक साउंड चेक करता हूँ, क्योंकि काफी देर से मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई प्लीज कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर है, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सुंदर जी सही सुनाई दे रही है आवाज, किसी Yes, को yes, इश्यू है तो clear. बोलिए। ओके, फाइन फाइन फाइन। जस्ट साउंड चेक ना, कि कभी ये इंटरनेट ऊपर नीचे जाता है, तो इसलिए यस यस एक लंबे कॉल में एक चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू ओके थैंक थैंक यू। यू। और है ना, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरैक्टिव उतना नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े कॉल में जहाँ पर इतने सारे हम लोग हैं, 60 लोग, तो वो उसमें क्वेश्चंस हम लोग एंड में ही रखते हैं, है ना, कि नहीं तो डायरेक्ट जो सामने सामने हम बात करते हैं तो और इंटरेक्शन कर सकते हैं ना। तो इसमें अभी हम लोग तीनों कवर कर लेंगे, यूरेनियम, मरकरी और मैंगनीज, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। तो अभी यूरेनियम में आते हैं। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और गुजरात में बैठ के हमको ये इसको समझना बहुत अभी जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि जैसे अभी हमारा जैसी संस्था है CSPC जो सैलिनिटी पे फोकस्ड है, फ्यूचर में यूरेनियम पे फोकस संस्था जरूर होगी, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है यूरेनियम की जो डायरेक्शन है। जैसे अगर हमारी संस्था देखेंगे तो हम कंप्लीटली फ्लोराइड पे फोकस्ड हैं ना, तो क्योंकि फ्लोराइड इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, जिसके ऊपर काम करना। और भी संस्थाएं जरूरी हैं जो कंप्लीटली ये फ्लोराइड के आर्सेनिक पे फोकस करें। यूरेनियम इस तरीके का प्रॉब्लम है जो और 5-10 सालों में ऐसा निकल के आने वाला है कि जिसमें बहुत ज्यादा फैलने वाला है। अभी इसमें जो जाना, आपने यूरेनियम सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पर, और जरूर आपने सुना होगा जैसे हिरोशिमा नागासाकी जो न्यूक्लियर बॉम्ब, जहां पर अनफॉर्चुनेटली वही जगह जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब का जो यूज हुआ था, है ना, उसमें भी यूरेनियम और रिलेटेड जो रेडियो एक्टिव बोलते हैं, यानी कि जो रेडिएशन इमिट करता है ना, यानी कि उसमें आइसोटोप्स बोलते हैं, मतलब कि जो उसकी जो एक्टिवेशन स्टेट है ना, कि जो वो डीके होता रहता है। यूरेनियम के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जैसे U-238 है, तो वो डीके होता जाता है, यानी कि वो आप देखेंगे तो थोड़े समय के बाद वो आधा हो जाएगा, है ना। तो यूरेनियम आधा हो रहा है तो माना कि वो रेडिएट कर रहा है ना, रेडिएशन कर रहा है, और वो शरीर के लिए हानिकारक है। मगर पानी में जितना पाया जाता है वो रेडिएशन के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये जो 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर जो मैंने लिमिट बताया, WHO का लिमिट है, और इंडियन गवर्नमेंट भी उसको मानता है। तो वो जो 30 माइक्रोग्राम्स का जो लिमिट है, जैसे कि आर्सेनिक का देखेंगे तो 10 और 50 माइक्रोग्राम्स है ना, WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रहे हैं, तो यूरेनियम का 30 है, तो उसी रेंज में है। जबकि आप फ्लोराइड देखेंगे तो इसके 1000 टाइम्स के रेंज में है ना, 1 मिलीग्राम पर लीटर इससे 1000 टाइम्स के लिमिट में है, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। यूरेनियम और आर्सेनिक उससे काफी कम मात्रा में ही हानिकारक है ना, या हार्मफुल है। तो जो यूरेनियम है वो 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर ही हार्मफुल है। अभी हम लोग इसके आएंगे कि यूरेनियम कहाँ से आ रहा है ना। अभी यूरेनियम अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि 2 साल पहले एक स्टडी हुई थी, ड्यूक यूनिवर्सिटी US में उन्होंने स्टडी किया था, और उन्होंने देखा कि गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान, है ना, ये जो रीजन में काफी उनको हाई यूरेनियम के सैंपल्स मिले। अभी पिछले साल ही देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल जीवन मिशन ने मिनिस्टर ने रिप्लाई किया पार्लियामेंट में, और उन्होंने उनका ये पार्लियामेंट रिस्पांस भी है कि अहमदाबाद के पास में और नॉर्थ गुजरात के पास में उनको कई वेल्स मिले हैं
जो हाई यूरेनियम जिसमें पाया जाता है। एक नेशनल यूरेनियम प्रोजेक्ट है जो 5 साल पहले स्टार्ट किया गया और पूरे इंडिया में सभी काफी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। और ये पूरे भारत में 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर का एक ग्रिड बनाया गया और उसमें पोस्ट प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून का सैंपल लिया गया, यानी कि 62,980 into 2 सैंपल्स इन्हें लिए गए। अभी जैसा वो स्टडी था उसमें क्योंकि हमें से कई लोगों ने बीआरसी में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यहाँ पर इस में किरण है हमारे साथी, तो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, तो उसमें से ये इंफॉर्मेशन उनको मिला ना। अभी वो जो इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा है वो बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर से किया गया, मगर जब इंडिविजुअल स्टडीज हो रहे हैं तो इससे काफी ज्यादा यूरेनियम पाया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पार्लियामेंट में भी एक्सेप्ट किया उसमें भी यही दिख रहा है और जो ड्यूक यूनिवर्सिटी स्टडी है वही बता रहा है। तो ये लग रहा है कि यूरेनियम एक्चुअली ज्यादा फैला हुआ है मगर इसकी टेस्टिंग नहीं हो रही है और वो जो डेटा है वो बाहर नहीं निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है ना, तो वो एक तरीके का मिस्ट्री भी है और इसके कई सोर्सेस हैं। एक तो है कि नेचुरल बेडरॉक में है, यानी कि ग्रेनाइटिक फॉर्मेशन कहीं है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यूरेनियम, यानी कि देखो अर्थ के फॉर्मेशन, जो अर्थ सोलर सिस्टम अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई है ना, उस समय से देखेंगे तो ये सभी जो मिनरल्स हैं वो सभी रॉक्स के अंदर है, तो उस समय से ये सब एग्जिस्टिंग है ना, बेड रॉक के अंदर ये पाया जा रहा है और थोड़े थोड़े अमाउंट्स में है। और हमारे कई सारे जो एग्रोकेमिकल्स, यानी कि कई हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, कई केमिकल्स एग्रोकेमिकल्स है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा यूरेनियम है और वो धीरे धीरे पानी में भी जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में कम रिसर्च हुआ है, कई और देशों में ज्यादा रिसर्च हुआ है, कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट जो होते थे पहले, यानी कि जो भारत में 1999 में हुआ पोखरान में, तो ये जो टेस्ट है जो पोखरान में हुआ था वो सब अंडरग्राउंड हुआ था, यानी जो राजस्थान में हुआ था वो अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। और ये 1960 के बाद ये सारे टेस्ट अंडरग्राउंड हो रहे हैं, मगर उसके पहले यानी कि करीब 20 इयर्स ऑफ टेस्ट, 20-25 इयर्स वो एटमॉस्फेरिक टेस्ट हुए, यानी कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो ओपन एटमॉस्फेयर में किया गया है ना। और वो एक तरीके का नेशनल प्राइड का भी अचीवमेंट था क्योंकि उसमें जो इमेजेस आते हैं वो है ना एक नेशन को प्राइड भी थे, तो वो अलग एक डायरेक्शन पे जा रहा था। मगर पूरी दुनिया में लोगों को पता चला कि ये जो यूरेनियम है जो एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट से निकलता है वो पूरे अर्थ में फैलता है। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हमको पता चल रहा है कि हमारे पूरे अर्थ में हर केमिकल्स फैले हुए हैं और इफेक्ट पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसी तरह ये जो यूरेनियम है पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलकर बारिश जब होती है तो वो नीचे गिर जाता था और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर में ये जाकर बैठा हुआ है। तो ये भी एक सोर्स है जो पुराने न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। जो पावर इंडस्ट्री है ना, एनर्जी इंडस्ट्री है, वो भी वेस्ट में यूरेनियम को इमिट करता है और कई और इंडस्ट्रीज में है। एंड कई एक्स्ट्रा सोलर रेडिएशन, यानी कि एक्स्ट्रा अर्थ के बाहर से जो रेडिएशंस हैं, अर्थ के बाहर से यूरेनियम का भी एक कॉस्मिक फॉलआउट से, यानी कि बाहर से भी यूरेनियम का एटमॉस्फेयर के अंदर से एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जाता है। तो यूरेनियम के कई सोर्सेस हैं ना, कि बहुत सारे हैं। अभी गुजरात और राजस्थान में कहाँ से हैं, एक तो लग रहा है कि बेडरॉक में है ना, और उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ कि ये रिलीज कैसे होता है। अभी जो मोस्ट रीसेंट स्टडी है उसमें ये पाया गया कि जो भी ग्राउंड वाटर एक्विफर्स हैं जहां पर बाइकार्बोनेट ज्यादा है, यानी कि बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 यानी कार्बोनेट है ना, HCO3 बाइकार्बोनेट। अगर आप में से कोई इसको नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, जो लोग इसको समझ सकते हैं तो वो इसको एब्जॉर्ब कीजिए कि बाइकार्बोनेट जहां पर ज्यादा है, नाइट्रेट्स भी ज्यादा है, और शैलो एलुवियल की ग्रेनाइट मतलब बहुत डीप नहीं, जो थोड़ा शैलो यानी कि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और उसमें वाटर टेबल का हाई फ्लक्चुएशन यानी ऊपर नीचे जाता है, तो एक्विफर में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट यानी कि ऑक्सीजन का एक्सपोजर और रिडक्शन एनवायरनमेंट जहां पर ऑक्सीजन का एक्सपोजर नहीं होता है, ये दोनों चीज जहां पर हो रहा है ना, कि बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, शैलो कंडीशंस और हाई फ्लक्चुएशन, ये सब जो चीजें जो ड्यूक यूनिवर्सिटी का स्टडी है 1.5 साल पहले, उन्होंने कहा है कि ये सारे कंडीशंस यूरेनियम के रिलीज यानी कि रॉक फॉर्मेशन से यूरेनियम के रिलीज को प्रमोट करता है। बहुत हाई सैलिनिटी जो गुजरात में कई जगह है, मान लीजिए कि जो ऊपर के एलुवियल एक्विफर है जैसे महसाणा में है,
वहां पर सैलिनिटी बहुत हाई है, और नीचे के बेड रॉक है बहुत नीचे, वहां पर यूरेनियम है। तो ये हाई सैलिनिटी भी लीचिंग में हेल्प करता है यूरेनियम के। तो ये कंडीशंस हमारे गुजरात में और ये रीजन में बहुत सारे एक्विफर्स में हैं। तो अगर हम मेजर करने जाएंगे तो बहुत जगह में यूरेनियम डेफिनेटली मिल सकता है, मगर लैब्स कम हैं जो इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही कम आईआईटीज भी हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर में एक रिसर्चर है डॉक्टर अब्बास सिंह जो यूरेनियम पे फोकस करते हैं, और आईआईटीज में भी कम लोग हैं जो यूरेनियम टेस्टिंग अच्छे से करते हैं। तो अब्बास सिंह इस तरीके के प्रीमियर रिसर्चर है इंडिया में जो यूरेनियम के रिलीज पे फोकस करते हैं। और ये भी पाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है CO2, वो भी यूरेनियम को ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। तो ये हमको सभी को गुजरात में जानना जरूरी है। आपको अगर ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लग रहा है तो ये बेसिक समझ लीजिए कि यूरेनियम है गुजरात के कई पार्ट्स में, जरूर है। अभी ये स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, ये जो मैप है यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा कि ये दिखाता है कि पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब में अगर देखेंगे तो किडनी फेलियर कहाँ पे ज्यादा है ना। और ये किडनी फेलियर क्या है कि किडनी स्टोन नहीं यानी पथरी नहीं, किडनी फेलियर यानी कि जो किडनी काम करना बंद करता है। तो भारत में भी कई हॉटस्पॉट्स हैं जो किडनी फेलियर के हॉटस्पॉट्स है, ये बढ़ता जा रहा है। भारत में ऐसे 6 जगह है जहां पर किडनी के हॉटस्पॉट्स हैं, किडनी फेलियर के हॉटस्पॉट्स। और उसमें से एक चीज सस्पेक्ट किया जा रहा है कि क्या हाई यूरेनियम इसका असर, इसका रीजन हो सकता है क्या, क्योंकि हाई यूरेनियम किडनी को हार्म करता है। इसको बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि किडनी को हार्म करता है यूरेनियम। तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि जो बच्चों में भी किडनी डिजीज, या अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में जाएंगे, मैं गया था प्रकाशम बोलकर जगह में, वहां पर एक 13 साल की छोटी बच्ची को डायलिसिस शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग है ना वहां पर किडनी अफेक्ट, गाँव में वहां पर डायलिसिस सेंटर है गवर्नमेंट के PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो ये इस लेवल पर ये क्रॉनिक डिजीज फैल गया है। और ये एक इंडिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है पंजाब में, और इसको कार्सिनोजिन भी मान रहे हैं लोग, मगर ज्यादा यूरेनियम का जो असर है वो किडनी के ऊपर है, और बहुत हार्मफुल है किडनी के लिए। और एक बार किडनी खराब होता है तो शरीर में बहुत सारे चीज खराब हो जाता है ना एक साथ। तो ये सभी चीजें हैं किडनी का जो यूरेनियम का जो असर, और ज्यादातर हमको जो फोकस करना है वो किडनी फेलियर के ऊपर जो ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगेन RO के सिस्टम्स हैं जो हेल्प करते हैं यूरेनियम, मगर सभी RO सिस्टम्स नहीं। अभी पंजाब में 5 की 6 हजार RO प्लांट लगाए गए हैं यूरेनियम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मगर जैसे BRC ने एक स्पेसिफिक RO सिस्टम बनाया है यूरेनियम के लिए, तो कोई भी RO मशीन यूरेनियम को अच्छे से रिमूव नहीं करता है ना। ये हमको जानना जरूरी है, और RO को हर चीज के लिए प्रमोट करना ये बहुत हानिकारक है। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की है। तो यूरेनियम के बाद हम लोग जाते हैं मरकरी पे। शुभश्री आप कवर करना चाहते हैं मरकरी? हाँ जी। ओके ओके ओके, ये शुभश्री आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, बिफोर मूविंग टू मर्क्यूरी, मुझे आर्सेनिक में एक करेक्शंस करने थे कि आर्सेनिक का जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है, और जो मैक्सिमम कोई सेफ सोर्स अगर नहीं है तभी वो 0.05 जा रहा है। ठीक है, अभी आते हैं मरकरी। ये मरकरी हमारे हर एक घरों में हमारे पास होता है। एक इसकी जो डिजायरेबल जो ये हाईली टॉक्सिक होती है मरकरी। ये जो हम जो बॉडी में परमिसिबल जो लिमिट जो बोल रहे हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.01 मिलीग्राम है प्रति लीटर है, और ये काफी टॉक्सिक्स होती है। ये हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचा सकती है एक मरकरी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये मरकरी आती कहाँ से हमारे पीने के पानी में? जैसे काफी सारे जो हम अभी एक एक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, ये भी एक जमीन के अंदर से ही रिलीज होती है मरकरी। यही चट्टानों में होती है। वॉइस कट जाता है। ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। अभी आ रही है आवाज? एक साउंड चेक कर सकते हैं, आई थिंक सभी को पूछ सकते हैं कि साउंड चेक के लिए। सबको शुभश्री की आवाज सुनाई दे रही है?
यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, उनका थैंक यू। वॉइस काट जाता है, थोड़ा उनको साउंड चेक करने दो। ओके दादा, आप एक रीजॉइन करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सुनाई दे रहा है दिया लगता उसके है। बाद, हाँ कर दिया, हो गया। ओके, थैंक यू। ओके, तो जैसे मैं बता रही थी कि मरकरी ये भी एक जियोजेनिक इशू है। ये हमारे ज़मीन के नीचे चट्टानों में पाई जाती है, और यही जब माइनिंग में ये कोल बर्न होता है तब ये मरकरी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, या किसी इंडस्ट्रीज में जो मेटल के इंडस्ट्रीज होते हैं, जो बॉयल बर्नर्स होते हैं, जब उसमें बर्निंग का प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में, तब उसमें मरकरी रिलीज होती है। अभी घरों में अगर मैं बात करूं कि हमारे हर एक घरों में जब बुखार होती है, हमारे पास एक थर्मोमीटर होती है, उसमें जो फीलिंग होती है वो मरकरी की होती है, जो बताता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है। ये मरकरी वैसे तो बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से, क्योंकि हम हर एक घरों में जब ये मरकरी का थर्मोमीटर होता है, कभी ना तो कभी किसी ना तो किसी के हाथ से तो वो थर्मोमीटर गिरता है जब हम इसको शेक करते हैं, धोते हैं, कुछ ना तो कुछ करते हैं। तो ये कहीं पे भी ये अवेयरनेस नहीं है आज के डेट में भी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी, क्योंकि ये बायोमेडिकल जो ऑडिट्स होती है इसमें भी एक बहुत बड़ा एक इशू है कि थर्मोमीटर्स जो बने हैं उसको आज के डेट में डिजिटल में शिफ्ट होना चाहिए। मे बी ये बहुत कॉस्टली हो, लेकिन फिर भी ये सेफ होता है डिजिटल थर्मोमीटर्स, क्योंकि जब ये मरकरी का थर्मोमीटर टूटता है तो हम इसको डिस्पोज करने का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हम देखेंगे अगर वो टूटता है तो वो इवापोरेट भी हो जाता है, स्किन में ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड सुंदर जी। अभी इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये जो मरकरी है ये हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये इवापोरेट होता है, तो हम उसको इनहेल भी कर सकते हैं, हम इसको हमारे सांसों के थ्रू हमारे लंग्स में भी जाता है। ये बहुत सारे अभी केस स्टडीज इसमें आए हुए हैं, जबकि ये बायोमेडिकल वेस्ट से इसमें ये जब ऑडिट्स होते हैं कि ये नर्वस सिस्टम को बहुत हाईली अफेक्ट करता है। ये सुनाई देने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की क्षमता, ये सारी चीजों को कमजोर करती है, मसल्स मूवमेंट को कमजोर करती है। एक बहुत बड़ी एक केस स्टडी भी हो रखी है मरकरी के ऊपर कि जहाँ पे ये किडनी को भी डैमेज करती है। ये हिमाचल के जो एरिया है वहां पे ये स्टडीज हुई थी, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ये डैमेज करते हुए किडनीज को भी ये बहुत क्षति पहुंचाता है। तो मरकरी एक बहुत जनरली ऐसा एक एलिमेंट्स हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन हमारे हर एक घरों में होती है एक थर्मोमीटर के रूप में। तो अगर अभी घरों में ये टूटती है तो उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना, हैंडल करना बहुत जरूरी है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी यूरेनियम के ऊपर, कि जैसे यूरेनियम का एक केस स्टडीज, मैं जब झारखंड में थी तो वहाँ पे जादूगढ़ा बोल के एक है जहाँ पे यूरेनियम के न्यूक्लियर पावर का उसका एटम्स बनते थे। तो वो एरिया है माइनिंग का, इंटायर माइनिंग का। तो जब हम वहाँ पे काम करना चालू किए थे तो वहाँ पे ऐसे काफी ऐसे बेल्ट्स हैं, 2 गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज के डेट में 5 साल के बाद भी वहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बिकॉज इनफर्टिलिटी रेट इतना कम हो गया है, पानी में इतनी टॉक्सिन्स है, इतना ज्यादा यूरेनियम वो लीच होता हुआ आता है डिस्पोजेबल, क्योंकि इंडस्ट्रीज के काफी नॉर्म्स हैं जो सही तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। तो जब वो डिस्पोज किया जाता है जो वेस्ट में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ से, तो उसमें थोड़ा परसेंटेज भी जब यूरेनियम होता है वो पानी में लीच करता हुआ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है जो डाउन स्ट्रीम में जो विलेजेस होते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सुभाश्री जी। अभी हाँ, थैंक यू ये मरकुरी के बारे में भी शेयर करने के लिए। हम लोग आज के लास्ट में टॉपिक में आते हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज मिला है। आई थिंक हमने जो आज डिसीजन लिया कि हम इसके तक ही सीमित रखेंगे खुद को आज के दिन पे, वो शायद अच्छा भी किया हमने, मगर ये ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी और हेल्थ के इश्यूज हैं ये जो आज हम बात कर रहे हैं, और ये बहुत जानना ज़रूरी है हम सभी को। एज NGOs, एज प्रवाह नेटवर्क, हम सबको हम सब जानेंगे तो हम कम्युनिटी तक लेके जा सकते हैं इसको, है ना। और जैसे हमने मैसेजेस में भी देखा तो लोगों को और भी ऐसे इश्यूज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है, और यही जो इश्यूज है इसमें और डीपर भी आपको जानना है। जैसे यूरेनियम और क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, फ्लोराइड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, जो तो जरूर हम लोग अवेलेबल हैं। आप में से लोग कि जिनको इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक के अंदर और अंदर जा सकते हैं। तो हमने आज फ्लोराइड के बारे में बात की है, आर्सेनिक के बारे में बात किया, नाइट्रेट्स के बारे में बात किया, यूरेनियम के बारे में बात किया एंड मर्क्यूरी के बारे में बात किया। फ्लोराइड के बारे में एक चीज जो सुभाश्री जी ने कहा कि वो ये है कि जो 1000 डेज का जो होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में और 2 साल बच्चे के एज तक, तो वहां पर जो माँ जब फ्लोराइड वाला पानी पीती हैं तो ये जो फ्लोराइड है वो शरीर में जाकर आयरन को अब्सॉर्ब करने नहीं देता है, और अलग अलग तरीकों से, है ना। तो और उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बढ़ जाती है, और आपको पता है कि हेमोग्लोबिन अच्छा होना बहुत जरूरी है मदर्स के लिए। तो ये फ्लोराइड जाकर एनीमिया को बढ़ा देता है ना शरीर के अंदर, और आयरन अब्जॉर्प्शन को कम कर, मतलब आप आयरन की गोली खाते रहेंगे मगर आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा ही नहीं। डॉक्टर तो को बोलेंगे कि आप आयरन क्यों नहीं ले रहे हैं, मगर रियल रीजन होगा पानी के अंदर, है ना। तो ये इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और यही चीज एनीमिया का दूसरा एक कारण है फ्लोराइड को छोड़कर, और वो है मैंगनीज, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैंगनीज कैसे एनीमिया को भी बढ़ाता है। मैंगनीज ऐसा चीज है जो उसका लिमिट करीब करीब आयरन जैसा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा 0.3 मिलीग्राम पर लीटर जैसे आयरन का था, मैंगनीज का लिमिट 0.1 है। मगर अभी जो एक जरूरी चीज है कि मैंगनीज और आयरन एक साथ मिलता है ना, कि अभी गुजरात में भी कई जगहों में आयरन मिलता है, तो शायद उसके साथ मैंगनीज भी मिलता होगा। और भारत की जो आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, पूर्व के तरफ जाएंगे, तो वहां पर आपको आयरन भी बहुत मिलता है, और मैंगनीज भी अभी डिटेक्ट जब कर रहे हैं तो पता चल रहा है टेस्टिंग करते हुए कि मैंगनीज भी बहुत ज्यादा मिल रहा है ईस्टर्न स्टेट्स में। अभी जो लिमिट है उसमें ये जानना जरूरी है कि ये जो आपको इमेज यहाँ पर दिख रहा है कि जो रॉक फॉर्मेशन है, ओर है, यहाँ पर मैंगनीज भी है और आयरन भी है ना, दोनों साथ में है, एक ही साथ मैंगनीज एंड आयरन और साथ में है इस पिक्चर में। और ये जो आपको स्टेन्स दिखाई दे रहे हैं कि मैंगनीज एंड आयरन साथ में पानी में आकर ये स्टेन्स कॉज करता है ना आपके पानी में। तो ये दोनों भाई भाई समझ सकते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक साथ प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। और इनकी जो लिमिट है, ऐसे दो ही BIS के पैरामीटर में ऐसे दो ही चीजें हैं जिसका लिमिट एक साथ है, यानी मैंगनीज प्लस आयरन 0.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसके कारण हम लोग लास्ट में और भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे, है ना, कि मैंगनीज और आयरन के बीच में क्या एक रिश्ता है। तो ये कैसे आता है ना पानी के अंदर। तो मैंगनीज एक तो है कि जैसे मैंने कहा कि जियोलॉजी में नेचुरली भी है, आयरन के साथ है, और आर्सेनिक के बारे में जैसे सुभाश्री जी कहा, आर्सेनिक भी आयरन के साथ है। तो ये सभी चीज थोड़ा इसीलिए आप उनकी लोकेशंस देखेंगे तो लगभग आपको एक सेम लोकेशंस भी मिलते हैं, मगर जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही हो, मगर 90% केस में आपको एक साथ मिलेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि आयन जहां पर है वहां पर आर्सेनिक भी मिलेगा, वो भी जरूरी नहीं है कि जहां पर आयन है वहां पर मैंगनीज भी मिलेगा, वो भी जरूरी नहीं, मगर एक साथ मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैंगनीज और आर्सेनिक आयरन की लोकेशंस में मिलना ज्यादा है, और आयरन ज्यादा फैला हुआ है, लोहा जो है वो ज्यादा फैला हुआ है, मैंगनीज एंड आर्सेनिक उसके तुलना में कम है। अभी ये भी माना जाता है कि कई सारे जो ट्रैफिक जो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो गाड़ी यानी कि व्हीकल एमिशंस है ना, उसके अंदर से भी मैंगनीज रिलीज होता है। इसलिए हाई ट्रैफिक वाले जगहों पर पानी में मैंगनीज ज्यादा दिखा है, तो सिटीज में आपको ज्यादा दिख सकता है। कई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मैंगनीज यूज किया जाता है और रिलीज किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कई सारे जो चाय के फॉर्म्स है ना, सुभाश्री के जैसे फ्लोराइड के बारे में बात किया, फ्लोराइड भी ऐसा है। कई सारी जो चाय है, जो टी है, अभी हमारे देश में 2 मेन जगह है, एक तो दार्जिलिंग है और एक नीलगिरीज है
है ना। तो उसमें भी कोई कोई प्लांट्स हैं, कोई कोई प्लांटेशन है, कोई कोई टी एस्टेट्स हैं, 200 साल से जो पुराने पुराने चाय के बागान हैं भारत में, उसमें कई कई चाय हैं जहाँ पर नेचुरली चाय के अंदर फ्लोराइड है, नेचुरली चाय के अंदर मैंगनीज है ना। अभी किसी को पता नहीं है ना। तो ये इनफैक्ट चाय के बारे में मुझे भी पता था, मैंगनीज के बारे में मुझे भी तो रिसेंटली ही पता चला। तो मगर इंटरेस्टिंग बातें हैं सब। अभी इसके लिए क्या चाय पीना बंद कर दें? नहीं, मैं खुद लोगों को जाकर ये बात कहता हूँ और मैं खुद चाय पीता हूँ। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि मेरे बोलने से उन्होंने चाय पीना बंद कर दिया, मगर ये मुझे नहीं लगता है कि जितना हम लोग पीते हैं उतना ठीक है। कई कई जो आदतें हैं कि लोगों को दिन में 10 बार 15 बार, ऐसे भी लोग हैं जो चाय पीते हैं, तो उसमें इतना असर हो सकता है कि फ्लोराइड चाय के अंदर से, कि मैंगनीज चाय के अंदर से लोगों को असर पड़े। नॉर्मल 1-2 बार पीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंगनीज के जो हेल्थ लिंकेजेस है जो मैंने कहा, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ ज्यादा है। हाँ, मैंगनीज का जो सीवियर प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी ब्रेन के साथ प्रॉब्लम है, ब्रेन डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम है। मगर ये भी जानना जरूरी है कि मैंगनीज जब इनहेल अगर कोई कर लेते हैं, यानी जो मैंगनीज पॉइजनिंग, इसको मैग्नीशिया बोलते हैं, जो अगर मैंगनीज कोई सांस में इनहेल कर देते हैं, है ना, कि मैंगनीज के कोई कंपाउंड, कोई केमिकल्स को, तो वो बहुत सीरियस चीज है, बहुत टॉक्सिन है, वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज जल्दी ही कर सकता है। मगर मैंगनीज अगर हम लोग पानी के अंदर पीते हैं तो वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करता है, मगर उतना ज्यादा नहीं। जैसे मैंने यूरेनियम के लिए कहा कि यूरेनियम वैसे तो हाँ रेडियो एक्टिव है, मगर जो पानी के अंदर है, जो जितने मात्रा में है, वो रेडिएशन नहीं करता है। उसी तरह मैंगनीज अगर आप सांस से अंदर ले लें तो हाँ वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मगर मैंगनीज पानी के अंदर जो है वो बहुत कम मात्रा में है, वो हाँ लॉन्ग टर्म तक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कर सकता है, इसीलिए उसका लिमिट रखा गया है। मगर उसका एक दूसरा प्रॉब्लम है भारत के कॉन्टेक्स्ट में और बहुत वाइड लेवल पे, कि ये बहुत ही ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है, यानी कि ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को बहुत कम कर देता है शरीर में। जहां पर मैंगनीज है वहां पर आपकी जो खाने में अगर आयन है, जैसे अगर आयन जो खाने के अंदर है वो भी 2 टाइप के है। एक जो एनिमल सोर्सेस हैं उसको हेमे आयन बोला जाता है, यानी उसमें हेमोग्लोबिन रेडी है जो शरीर में ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। और जो वेजिटेरियन सोर्सेस है उसको नॉन हेमे आयन बोला जाता है, जो सिर्फ 2% एब्जॉर्ब होता है, और एक तरीके का विटामिन सी उसके साथ उसको 10% तक लेके जाता है। जबकि जो एनिमल आयन है वो 30-40% लेवल तक भी आयन को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनिमल बेस्ड डाइट को प्रमोट करें, मगर ये साइंस ये चीज कहता है कि हेमे आयन ज्यादा एब्जॉर्बेबल है। अभी जब मैंगनीज आता है इसके अंदर तो इसका 1% तक 2% तक इसके एब्जॉर्प्शन को लेके चला जाता है, और अगर ऑलरेडी हमारे खाने में बिल्कुल आयन की कमी है तो वो 0 तक भी चला जाता है। और उसके बाद देखिए कि जो माताएं हैं और जिनको आयन की बहुत जरूरत है, आयन डेफिशिएंसीज हैं, कहीं कहीं हमारे वर्क एरिया में सिकल सेल एनीमिया बोलकर प्रॉब्लम भी है, जहां पर मलेरिया ज्यादा है वहां पर सिकल सेल एनीमिया बोलकर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो भी ज्यादा है। तो इसके साथ सब जब मैंगनीज भी मिल जाएगा तो प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉज करता है। तो ये सब जो हम लोग ने ये काफी सारे जो कंटेमिनेंट्स की बात की, तो उसमें से हमको ये समझना है कि एक अकेला नहीं होता है प्रॉब्लम पानी में। पानी में एक अकेला सैलिनिटी नहीं होता है, पानी में एक अकेला फ्लोराइड नहीं होता है, एक अकेला आर्सेनिक नहीं होता है। पानी में प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज मिला हुआ है ना, जब तक हम लोग उसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है, और वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने आयरन मैंगनीज कहा, उसी तरह यूरेनियम और फ्लोराइड जब मिलता है तो फ्लोरोसिस को बहुत बढ़ा देता है। उसी तरह बाकी और भी कंटेमिनेंट्स हैं। तो कंटेमिनेंट्स की एक तो उनको समझना कि वो खुद में क्या प्रॉब्लम करते हैं, दूसरा समझना कि वो जोड़कर क्या प्रॉब्लम करते हैं, है ना। तो ये सब हम धीरे धीरे करके समझेंगे और धीरे धीरे अलग अलग इंटरेक्शंस केस स्टडीज के अंदर भी समझेंगे। एक साथ इतना सारा चीज हम लोग एक साथ प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने लिमिट किया है। शायद अगर आप लोग को लगता है कि ये भी कंटेंट बहुत ज्यादा है और वो भी हम हिंदी में बोल रहे हैं और मैं बहुत अगर फास्ट बोल रहा हूँ, तो प्लीज ये सब फीडबैक हमको दीजिए, क्योंकि फीडबैक के साथ ही ये जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव ना हो सकता है। तो लास्ट स्लाइड में आता हूं मैं कि ये वेस्ट बंगाल में बर्दवान डिस्ट्रिक्ट का ये मैपिंग है। वेस्ट बंगाल में मैंगनीज का जो मैपिंग है वो ज्यादा किया हुआ है, झारखंड में भी किया हुआ है, बिहार में भी किया हुआ है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा मैंगनीज पाया गया, ऑलमोस्ट 40% ऑफ सोर्सेस पूरे देश भर में हाई मैंगनीज देखा गया। रिसेंटली हमारे एक कलीग हैं जो एबी पॉल हैं, उन्होंने गुवाहाटी सिटी असम में किया,
तो उनको बहुत ज्यादा मैंगनीज मिला। अभी अगर जैसा जब तक जिसने आर्सेनिक का मैपिंग गुजरात में नहीं किया तो मुझे लगता था कि आर्सेनिक गुजरात में नहीं है, मगर अभी पिछले हफ्ते ही मुझे पता चला कि इतना ज्यादा शायद आर्सेनिक भी गुजरात में फैला हुआ है। तो जब तक टेस्टिंग नहीं करते हैं तब तक हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। तो टेस्टिंग करना जरूरी है और उसके बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि कोई प्रॉब्लम हमारे गुजरात में है कि नहीं है ना। तो ये जो हमने आज 6 कंटामिनेंट्स के बारे में प्रेजेंटेशन की है, हमको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है इसके आगे बढ़ने के पहले, है ना, क्योंकि इस कोर्स का मतलब है कि हम सब साथ में सीखें, हम आपसे सीखें, है ना, आप एक दूसरे से सीखें। तो और भय तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो मैं आपको इसके बाद में दिखाऊंगा भी कि आपको कम्युनिटी लेवल में लेके जाना है, उसके लिए भी हमने कई सारा कंटेंट बनाया। तो आज समय है तो हम लोग वो भी शेयर करेंगे, नहीं तो उसको अगले समय में भी शेयर करेंगे। हमारे एक साथी हैं किरण, उन्होंने कम्युनिटी लेवल में ये सब टॉपिक्स को लेके जाने के लिए 5 मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो अगर आप लोग को किसी को उसकी जरूरत है वो हम अगली बार से उसको ले सकते हैं, मगर पहले हम मेन जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको सब अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम लोग कम्युनिटी लेवल इश्यूज में हम लोग नेक्स्ट टाइम से जा सकते हैं ना। इसके साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग ये जो टॉपिक है उसको मैं पॉज करता हूँ और क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये अच्छा रहेगा कि जूम में आपके पास एक फैसिलिटी है हैंड्स अप करने के लिए, कि आप एकदम आप साइड में जाएंगे तो आपके बॉटम राइट में आप अपने पार्टिसिपेंट्स देखेंगे, उसके नीचे आप रेज हैंड बोलकर है, आप रेज हैंड करके करेंगे तो इतने लोगों में से इजियर होगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके ओके प्लीज। हेलो। हाँ अर्शी भाई प्लीज। हाँ सुंदर जी, आपने नाइट्रेट के बारे में जब बताया ना, हाँ तब उसमें एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से मतलब नाइट्रेट बढ़ता है और एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर यूज है, तो मतलब अगर एनिमल वेस्ट से नाइट्रेट बढ़ता है तो फिर मतलब दिक्कत ये है कि एनिमल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने, बहुत अच्छा सा ये अर्शी भाई आपने जो सवाल पूछा है, तो कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि ये जो नाइट्रेट्स, अगर क्योंकि नाइट्रेट एनिमल सोर्सेस से आता है, यानी कि अमूल पूरा जो है इकोनॉमी वो पूरा ये कैटल इकोनॉमी पे और उसके ऊपर नाइट्रेट्स है, और एग्रीकल्चर का पूरा इकोनॉमी नाइट्रेट्स के ऊपर है ना। तो अगर नाइट्रेट को हम बहुत कंट्रोल करते हैं तो ये पूरे इकोनॉमी का क्या होगा, है ना, डेयरी इकोनॉमी का क्या होगा और एग्रीकल्चर का भी क्या होगा, है ना। तो इसीलिए है ना, इसलिए जब जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, है ना, कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उसमें एक तो है कि हेल्थ इंपैक्ट देखा जा रहा है, यानी कि इस देश में डिजीज और हेल्थ इंपैक्ट लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, और दूसरा भी ये देखा जा रहा है कि हम क्या ये कर सकते हैं क्या। जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ कि हमने एक इंटरनेशनल फ्लोराइड कॉन्फ्रेंस 2016 में किया था हैदराबाद में। वहां पर कॉन्फ्रेंस ने बताया कि एंड इसमें हम सभी लोग करीब 150 लोग थे, हमने बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड 0.5 होना चाहिए। ओके 0.1 मिलीग्राम पर लीटर नहीं, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अभी ये ठीक है, साइंटिफिक तरीके से पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट से बता सकते हैं 0.5, मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? क्योंकि अगर 0.5 कहेंगे तो पूरा देश आ जाएगा, है ना, और नाइट्रेट में भी अगर हम लोग 10 mg रखते हैं तो पूरा देश आ जाएगा। तो यही आपकी बात बिल्कुल सही है, तो और ये चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। और जैसे कि ये BIS का भी एक कमेटी बैठा है, तो उस कमेटी के अंदर भी यही चर्चा है कि एक तो पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट है, दूसरी फिजिबिलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, और इकोनॉमी भी इंपैक्ट, ये क्या रियली हमारे देश में हम कर सकते हैं क्या, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मगर इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या, ये एक सवाल है ना। ये एक बिना सोच के हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा अर्शी भाई, और इसमें और भी कई सारे ऐसे आर्सेनिक के भी ऐसे एग्जांपल्स हैं इसी टॉपिक पे। थैंक यू। मैं छगन भाई बोल रहा हूँ। हाँ छगन भाई प्लीज। ये जो फ्लोराइड की बात हो रही थी, तो मुझे ये समझना था कि पानी में से हम फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये
वाटर क्वालिटी सैंपल का हम टेस्टिंग करवाते हैं तो वो लेबोरेटरी वाले बोलते हैं कि ये फ्लोराइड रिमूव नहीं होता है। तो अभी जो हमारी बात हो रही थी तो मुझे समझना था फ्लोराइड कैसे रिमूव हो सकता है। हाँ छगन भाई, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है कि एक तो है कि बरसाती पानी जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मगर आपके पानी के अंदर फ्लोराइड है और आपको रिमूव करना ही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो मैंने कहा कि आई थिंक हर जगह मैं आरओ कह ही रहा हूँ कि आरओ ये रिमूव करता है, आरओ वो रिमूव करता है, मगर आरओ फ्लोराइड अच्छे से रिमूव करता है ना। जैसे टीडीएस को रिमूव करता है तो आरओ फ्लोराइड को भी अच्छे से रिमूव करता है। उसमें जैसे कि यूरेनियम और मैंने और भी चीजें कहें, उसमें उतना अच्छा रिमूवल नहीं है ना आरओ सिस्टम से। मगर फ्लोराइड के रिमूवल उसके तुलना में देखेंगे तो आरओ सिस्टम्स अच्छे से करता है। फिर भी एक टेस्ट करने में अच्छा है कि हमारे पास जो आरओ मशीन है वो फ्लोराइड रिमूव करता है नहीं, एक बार टेस्ट कर लेना अच्छा है। दूसरी जो बात है कि आरओ ना, अगर हमको आरओ यूज नहीं करना है, अगर हमको लगता है कि आरओ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर हमको लगता है कि वो पानी का वेस्टेज करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, अगर वो इतना महंगा है 5-10 हजार का है, गांव में हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं, तो और भी हमारे पास तरीके हैं है ना फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए। अभी एल्यूमिनियम जो चीज है ना, कि जो एल्यूमिनियम जहाँ पर हमारा बर्तन है जो एल्यूमिनियम से भी बनता है, एल्यूमिनियम जो चीज है उसका फ्लोराइड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। यानी एल्यूमिनियम के साथ भी आप फ्लोराइड को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत पुराना टेक्निक है इसी के ऊपर और बहुत सिंपल टेक्निक है जो फटाकड़ी नहीं तो एलम को यूज करते हुए और सिंपल तरीका है उसको आप लेकर आप इसको मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे तो फ्लोराइड निकल जाता है। मगर इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो है कि उसमें बहुत घुमाना पड़ता है, उसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लोगों ने उसको किया है, उसको बोलते हैं नलगुंडा टेक्निक। दूसरा है कि उसका टेस्ट रह जाता है पानी में और वो धीरे धीरे पिछले 30-40 साल में, जैसे पिछली बार भी सुभाषिनी ने कहा एलम फटाकड़ी लोग यूज कर सकते हैं, मगर ये जो अभी आरओ कल्चर हुआ है, बिजली कल्चर हुआ है, एक्वागार्ड कल्चर हुआ है और कैंट का कल्चर हो गया है, अनफॉर्चुनेट, मैं इसके सहमत में नहीं हूँ। उसकी वजह से एक तो लोगों को ये सब टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है ना, कि पानी में टेस्ट नहीं होना चाहिए, एलम का टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आता है और लोगों को क्लोरीन का भी टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो हम करें क्या, है ना। और दूसरी बात यह है कि एल्यूमिनियम भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए हानिकारक है। यानी कि एल्यूमिनियम को माना जाता है कि एक कारण है जो एल्जाइमर्स डिजीज यानी कि जो ब्रेन को हाई एज में अफेक्ट करता है का एक कारण एल्यूमिनियम शायद हो सकता है। और फ्लोराइड के साथ भी ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है फ्लोराइड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स जो शरीर के लिए हानिकारक है। अभी जो ज्यादा एक्सेप्टेबल तरीका है फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए पानी से, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड एल्यूमिना। हमारे संस्था में भी हम लोग इसकी यूज करते हैं और ये एल्यूमिनियम से ही बना एक छोटे छोटे गोली, जैसे साबुदाना है उस तरीके का गोली बनाया जाता है। अभी ये बहुत अच्छे से फ्लोराइड को रिमूव करता है, मगर प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम भी पानी में आ जाता है ना, जो शरीर के लिए मैंने अभी कहा कि हानिकारक है और फ्लोराइड के साथ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, जो ब्रेन के साथ भी वो हार्मफुल है। तो अगेन हम लोग जैसा यूज करते हैं, आपको पता होगा कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि केले के जो स्टेम से बनाया जाता है वो और भी चीजों से बनाया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन एक नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है। अभी वो एल्यूमिनियम को थोड़ा बहुत निकलता है, इसलिए हम लोग जब फ्लोराइड रिमूव करते हैं तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना का यूज करते हैं, उसके नीचे एक्टिवेटेड कार्बन भी रखते हैं और वो काफी हद तक सेफ है और हम लोग कई साल से इसको यूज करते जा रहे हैं। और भी नए नए टेक्निक जैसे कि आईआईटी चेन्नई की जो यही लैब है, प्रदीप जी का लैब है, उन्होंने अभी फ्लोराइड पे काम करना शुरू किया है। एक वाटसन बोलकर कंपनी है, उन्होंने कैल्शियम बेस्ड एक मटेरियल बनाया है जो अच्छा काम करता है, मगर उसका रिप्लेस करते रहना पड़ता है, मगर वो सेफ है, वो भी फ्लोराइड के लिए काफी अच्छा। और भी कई टेक्निक्स हैं, तो फ्लोराइड को अगर रिमूव करना है पानी से, कई टेक्निक्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम लोग आपको कनेक्ट करा सकते हैं इस चीज के ऊपर। थैंक यू। जरूर। थैंक यू चंदन। Sundar, can I come in? यस शिल्पा बहन, यस प्लीज। नमस्ते। मेरे दो क्वेश्चंस थे, एक ये पहले वाले के रिलेटेड थे इसलिए मैं बीच में अभी बोली। ये था प्रश्न कि ये फ्लोराइड के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स बताई आपने और आर्सेनिक के लिए आपने फिल्टर भी बताए थे शायद, तो वो कितना इजीली ओपन मार्केट में अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2 कि लो कॉस्ट है कि नहीं, जो गांव में सामान्य लोग उसको यूज एक्सेस कर सके और अफोर्ड कर सके, ऐसा। तो ये दो क्वेश्चंस फॉर द फिल्टर्स थे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि वाटर क्वालिटी किट्स की बहुत बात करते हैं, तो उसमें आपने जो 6 एलिमेंट्स बताए
उसमें से कितने एलिमेंट्स उसमें पकड़े जाते हैं, उसकी मात्रा वगैरह समझ में आती है। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो और क्या करना चाहिए जो सामान्य तौर पे गांव स्तर पर हम कर सके। ये दो क्वेश्चन थे और जस्ट अ फीडबैक, इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय बोथ ऑफ यू। थैंक यू शिल्पा बेन। तो पहले तो मैं वाटर फिल्टर के बारे में शेयर करता हूँ कि एक तो है कि जो बहुत सिंपल तरीका, जैसे कि जो आर्सेनिक के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जो एक बायोसैंड फिल्टर, यानी कि जो हम लोग स्टैंडर्ड जानते हैं कि मिट्टी और ग्रेवल और सैंड है ना, ये पूरे चीज को एक तरीके से लाइन अप करना, और उसके साथ रस्टेड नेल्स, यानी कि जो कील हैं, रस्टेड जो रस्ट होते हैं उसको यूज करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव है आर्सेनिक को रिमूव करना। मगर ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, एक स्टैंडर्ड पैकेज नहीं है, और इसके अंदर से हम लोग पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये जरूर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर जो स्टैंडर्ड है उसके नीचे आर्सेनिक को लेके जा रहा है कि नहीं। वो ही प्रॉब्लम है ना, कि इस तरीके के ओपन सोल्यूशन से यही प्रॉब्लम होता है। अभी जो आर्सेनिक का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, जो IIT चेन्नई ने जो जिसको बाहर निकाला था, जो सुभाष ने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर उसको बनाया गया है। अभी वो जो टेक्नोलॉजी है अमृत, उसी चीज को ये वॉटसन बोलकर कंपनी, सॉरी मैं अगर कोई प्राइवेट प्रोडक्ट्स और कंपनीज का नाम ले रहा हूँ तो प्लीज आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए कि मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, नॉट प्रमोटिंग एनी एजेंसी की, एनी NGO और एनी प्रोडक्ट है ना। तो ये जो IIT चेन्नई का जो ये सोल्यूशन है, उसको ये वॉटसन कंपनी ने बहुत अच्छे से आर्सेनिक के चीज के लिए कार्ट्रिज बनाकर इसको प्रमोट किया है, और ये ज्यादा महंगा नहीं है। ये आई थिंक 700 रुपये उस रेंज में ही है, 600-700 रुपये। और इसको जो एंटरप्रेन्योर है जो इसके पीछे है, वो काफी सोशली माइंडेड है ना, कि वो और बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा IIT चेन्नई का ये जो चीज है, जो चेन्नई से ये जो दूसरी कंपनी है जो लेके आ जा रहे हैं, उनसे ये ऑर्डर किया जा सकता है। अभी फ्लोराइड का जहां तक बात है, अगेन यही सेम ग्रुप बना रहा है, और उनसे आप एक ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और ये ओपन मार्केट है, उनसे आप ले सकते हैं इसको। मगर और ये अफोर्डेबल भी है, आई थिंक सेम 1000 की ऐसी रेंज में, शायद अभी थोड़ा बड़ा भी होगा उसका कॉस्ट। मगर प्रॉब्लम इसकी जो अंदर मटेरियल है, उसका 2-3 महीने में अगर खराब हो जाता है तो उसकी सप्लाई चेन अगेन उनके साथ आपको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। अभी हम लोग भी बनाते हैं, इनरम की तरफ से हम लोग भी एक फ्लोराइड का फिल्टर बनाते हैं, मगर इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दूसरों को ये रेकमेंड करके मेंटेन करने में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे NGO हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी जैसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सभी को सिखा देते हैं, और हमारे सीखने से कई लोग इसको खुद से किए हैं, और एक इंडिविजुअल है जो इसको सोशली माइंडेड पर्सन बहुत सारी जगह में इसको लेकर गए हैं, ये एक्टिवेटेड एल्यूमिना का फिल्टर, मगर नॉट एज ओपन प्रोडक्ट, है ना। फ्लोराइड में मेरी जानकारी में RO को छोड़कर ओपन प्रोडक्ट मुझे नहीं पता कोई है, अपार्ट फ्रॉम दिस वॉटसन थिंग फ्रॉम चेन्नई, जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा इस तरीके के प्रोडक्ट्स आए तो कॉस्ट और कम होता जाएगा, बट करेंटली कॉस्ट फिर भी ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट एंड जो गांव के लोग हैं, फिर भी ये कॉस्ट ठीक है ना। इसको अंडर 1000 आई थिंक है ना, इसको यूज कर सकते हैं। जो बेसिक मटेरियल है कार्ट्रिज अंदर का, उसके बाद बाहर का जो बास्केट और ये वो सब कुछ है, वो सब ऑप्शनल चीज है। अभी टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शिल्पा बेन, कि हम लोग भी इसके ऊपर और भी एजेंसीज हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं कि कैसे इसको सिंपल किया जाए। इनफैक्ट मैं अगर सच कहूं तो आर्सेनिक को भी टेस्ट करना मुश्किल है। आर्सेनिक के किट है ना, कि आर्सेनिक का टेस्ट करने का किट है, मगर प्रॉब्लम है कि वो जो जब टेस्टिंग करते हैं तो वो आर्सेनाइट बोलकर गैस को रिलीज करता है, और वो जो आर्सेनाइट बोलकर गैस है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम मात्रा में, उतना ज्यादा नहीं है ना। तो ये जो मगर है, आर्सेनिक टेस्टिंग अवेलेबल है, उसकी किट्स भी अवेलेबल है। अभी जब दूसरे 4 में जाता है ना, तो यूरेनियम एक और संस्था है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के सेंसर्स एंड मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बैंगलोर बेस्ड, उनका नाम है FFEM, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। वो यूरेनियम पे भी कोशिश कर रहे हैं ना काम करने के लिए। हम लोग अभी तक उसको टेस्ट नहीं किए हैं, वो अभी ये बाकी कंटेमिनेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मगर ओपन मार्केट में अभी तक आपको जो स्टैंडर्ड किट्स हैं, जैसे कि
डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स बोलकर संस्था है जो दिल्ली बेस्ड है। तो शुभश्री मुझे करेक्ट करना मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैंगनीज और मर्क्यूरी का उसमें मिलता है क्या, मुझे पता नहीं, शायद मिलता होगा। डेफिनेटली फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट डेफिनेटली आपको सिंपल किट से आपको यूज कर सकते हैं। मगर मैंगनीज, मर्क्यूरी एंड यूरेनियम, इसमें मैंगनीज एंड मर्क्यूरी, शुभश्री मुझे करेक्ट करना, मुझे नहीं लगता है कि डीए के किट में है। नहीं, मैग्नीज, यूरेनियम या मरकरी भी नहीं है। एंड मरकरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ट्रिपल ए से ही हो सकता है, तो वो लैब मेथड से ही होगा उसके टेस्ट में। मगर यूरेनियम के ऊपर काफी प्रोग्रेस हो रहा है। इनफैक्ट एक रिसेंटली लास्ट 6 महीने पहले एक स्कूल की लड़की को अवार्ड मिला था, एक सिंपल यूरेनियम टेस्ट उसने बनाया था। और ये जो FFEM ग्रुप है वो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं यूरेनियम के ऊपर। इनफैक्ट यूरेनियम को हमको टेस्ट करना चाहिए ग्राउंड में। प्रॉब्लम है कि यूरेनियम कहाँ टेस्ट करें। आई मीन लाइक हमको अगर पता होगा कि यहाँ पे यूरेनियम है और अगर कोई लैब है जो इसको करते हैं तो क्रॉस चेक करके टेस्ट कर सकते हैं। तो मगर हाँ, बेसिकली शिल्पा बेन आपकी बात का अगर मैं जवाब दूं तो ये जो इमर्जिंग कंटामिनेंट्स हैं उसके ऊपर आपको फील्ड में टेस्ट करने की जो क्षमता है अभी तक सिस्टम्स में भी नहीं है और गवर्नमेंट की लैब्स में तो बिल्कुल नहीं है। इन शॉर्ट ये आंसर है। हेलो, यस सुंदर भाई, मेरा एक प्रश्न था। मैं भारती फ्रॉम CSP थी। हाँ भारती बहन, एक ये प्रश्न था कि ये जो सारे हम देख रहे हैं, तो मतलब जैसे TDS का है तो हम लोग पानी को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें, तो इस तरह से आज जो हमने जितने भी ये पैरामीटर देखे उसको बिना किसी टेस्ट के क्या हम ये कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कि पानी में फ्लोराइड है कि नाइट्रेट है कि क्या तत्व जो है वो इसमें है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है भारती बहन आपने, बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। क्योंकि क्या होता है ना कि काफी बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि गांव में भी हम जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। तो मैं बहुत साल पहले तमिलनाडु में घूम रहा था फील्ड में। तो मुझे छोटे बच्चों ने कहा कि वो बचपन में वो नारियल का जो स्टेम होता है, मतलब कि वहां पर नारियल के पेड़ बहुत हैं और छोटे बच्चे वहां पर नारियल की जो स्टेम है जो ना कि उसको चबाते हैं बहुत है। और उनके अंदर एक ऐसा समझ बन गया था कि वो हर्ष प्लीज सुमित्रा बेन का म्यूट कर सकते हो? थैंक यू। तो लोगों के अंदर ये समझ बन गया था कि ये नारियल के स्टेम को चबाने की वजह से ये फ्लोराइड उनको दांत में पीले पीले दाग पड़ रहे हैं कि लाल लाल। तो ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स हैं, है ना, कि कई सारे बिलीफ सही भी हो सकते हैं जो साइंटिफिक तरीके से लोगों को पता नहीं, और कई सारे बिलीफ शायद गलत भी हैं, है ना। कि आप हम जब लोगों के साथ काम करते हैं तो हमको ये पता चलता है ना कि हर चीज जो लोगों का जो विजडम की लोगों की जो समझ है, हर चीज साइंस से हम समझ नहीं पाते हैं, कई चीज गलत भी होते हैं। मगर जैसे कि आयरन है तो उसमें आप से कई लोगों को पता होगा जो गुआवा नहीं तो कि जो अमरूद के जो पत्ते हैं, लीफ है, उसके साथ आप मिक्स करेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है, मतलब कि काला हो जाता है ना। तो वो एक चीज काफी पॉपुलर है, लोगों को पता भी है। और मगर लोग कंफ्यूज कर देते हैं उसको आर्सेनिक के साथ भी। ये आर्सेनिक का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आयन का टेस्ट है और ये बता सकता है कि पानी में आयन है कि नहीं, लोहा है कि नहीं। मगर आप जो कह रहे हैं कि जैसे बाकी चीज पता जा सकता है कि नहीं, हाँ मैंगनीज का जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो स्टेन्स कॉज करता है, जैसे कि सैलिनिटी, क्षार, पानी में अगर क्षार है, सैलिनिटी है, तो वो खारापन है, अगर वो हमको दिखाई देता है गुजरात में तो इसी तरह आयन और मैंगनीज भी हम देख के जो कलर है उसका, जो एक रेडिश कलर है स्टेन्स आयन का और एक ब्लैकिश टाइप का कलर है मैंगनीज का, उसको देख के, मैंगनीज का मैं पूरा कंफर्म नहीं कर सकता हूँ मगर मुझे जहां तक समझ है, क्योंकि मेरा एकदम देख के मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मैंगनीज का देखते हुए, मगर जैसे समझ आ रहा है कि मैंगनीज भी उसकी जो स्टेन्स है, मतलब टाइल्स के ऊपर, उसके ऊपर से हम लोग समझ के उसको कह सकते हैं। मगर बाकी जो चीजें हैं जैसे यूरेनियम, मर्कुरी, ये सभी चीजों का टेस्ट ना कि स्मेल, उससे कोई भी तरीका नहीं है बताना। लोग कहते हैं कि कुछ मेटालिक लगता है, कि कुछ लगता है, मगर अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि उसको बिना टेस्ट किए समझ सकते हैं। सॉरी, है ना, कि कोई इस तरीके का सिंपल थिंग नहीं है। हाँ, है ना, तो यही मेरा रिस्पॉन्स था।
सुंदर भाई, मेरा एक प्रश्न था कि ये सारा जो काम है फील्ड में लोग फील्ड वाटर टेस्टिंग करके उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, ये सब बातों का। हाँ, तो ये बेसिकली जो कंटामिनेंट्स जैसे कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयन और भी इस तरीके के कंटामिनेंट्स हैं जो आप फील्ड में आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। और हमारी जो इंटरेस्ट थी इसको आगे रखने में, बाकी भी, ताकि जो यहाँ पर और संस्थाएं हैं जो एडवोकेसी में भी इंटरेस्टेड है ना, कि अगर नॉर्थ गुजरात में यूरेनियम है तो हमारे पास यूरेनियम टेस्टिंग का एक प्रोग्राम होना चाहिए गुजरात में। ये एक एडवोकेसी पॉइंट है ना। ये एक तो इसमें से कई चीज ऐसे हैं जो हम कम्युनिटी में जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जो हम कम्युनिटी में जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं, हम काम शुरू कर सकते हैं। कई और पैरामीटर्स हैं जैसे यूरेनियम, है ना, जो मैंने कहा है कि यूरेनियम हम डायरेक्टली, अगर हमारे पास किट नहीं है, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि एक ग्रुप है जो किट बना रहा है, मगर अगर यूरेनियम का डायरेक्टली नहीं है, मगर ऐसे कंडीशंस हैं जो हाई बाइकार्बोनेट, वो टेस्ट किया जा सकता है, सिंपल टेस्ट है। हाई नाइट्रेट, हाँ टेस्ट किया जा सकता है, सिंपल टेस्ट है। और शैलो एक्विफर, एलुवियल की ग्रेनाइट, वो भी देखा जा सकता है। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ हो सकता है गुजरात में, ये हम दूसरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ये अभी तक नहीं किया गया है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्टली भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरे माध्यम से भी टेस्ट कर सकते हैं ना इस चीज को। तो हाँ, जो इसमें 50% ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग कम्युनिटी बेसिस में टेस्ट कर सकते हैं, और आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे के सेशंस में कि क्या किया जा सकता है। मगर और चीजें हैं जो हम लोग दूसरे पैरामीटर्स में से समझ बना सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट के पास, नहीं तो दूसरे संस्थाओं के पास हमको जाना चाहिए जहाँ पर लैब्स हैं, जहाँ पर अच्छे फैसिलिटीज है, कि ये टेस्ट करना शुरू करें। यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश जैसा क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत बड़ा CKD का सेंटर गुजरात में ना हो जाए, ये हमको अभी से गुजरात में इसकी कोशिश करनी चाहिए।